Hi guys, I'm Fabi and I have the answer to the most important question, that is, why am I getting rejected? But usse pehle, so did I ever get rejected? The answer is yes. And कितने बार? तो एक, दो, तीन, बहुत बार. So let's come to the point now. So हम बार बार ये चीज़ सुनते हैं कि I had given my best in my interview, I prepared so well and I still got rejected. तो उसके एक नहीं बहुत सारे reasons हो सकते हैं. So, reason number one. So, whenever you are asked a certain question, be fully attentive to what the interviewer is asking you. Right? So, ऐसा नहीं कि आपने आधा क्वेश्चन सुना है, ठीक है, देन उसके बाद आप कुछ और आंसर दे रहे हो, राइट? और इन केस यू आर लाइक यू वेगली रिमेंबर द आंसर एंड वो भी नहीं तो आप ब्लफ करना चालू कर दे रहे हो. क्यों? क्योंकि बिकॉज यू वांट टू गिव एन आंसर. सो दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच एट ऑल. एंड अगर ऐसा है कि यू डोंट नो द आंसर, so just say that, sorry, I cannot recall the answer right now. That is more than enough, and that is a very polite way of answering. And if you know the answer, first of all, be fully attentive, listen to it, and then give the answer smartly and be crisp. Use the jargons and keywords which you remember is basically used in whatever technology is trying to ask you the question in. So इस तरीके से आप ही आंसर दे सकते हो. So second reason is how you present yourself is another impactful factor. So whenever you are attending an interview, so make sure that you are in your formal attire, आप well groomed हो, आपकी dress iron है, and this basically shows a strong personality. And मतलब it does not look like कि आप untidy हो and you just for the sake of attending interview आप आके इंटरव्यू में आके बैठ गए हो. वो वाली फील नहीं आनी चाहिए सामने वाले को, राइट? इट शुड लुक दैट हाँ आप बहुत सीरियस हो, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू, एंड सो यू आर इन अ वेरी गुड state of mind, as well as your attire speaks, because it speaks a lot about you. So make sure that you're well dressed, and your body posture also speaks things, a lot of things. So make sure आपका sitting posture proper है. Also, so these factors are important. So basically what happens, like, it enhances your overall personality and it adds a bonus marks to your evaluation. So it looks like a small thing, a small suggestion, but when you see it from a interviewer's perspective, तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही आप खुद evaluate करोगे. अगर सामने से आप interview ले रहे हो तो आप ये point ज़रूर note करोगे सामने वाले के बारे में. So yeah, so make sure of it. So the third reason, so sometimes what happen that, like, you are overqualified, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ. किसी कंपनी में पाइथन का रिक्वायरमेंट निकला है, राइट? एंड सपोज आई हैव अप्लाइड एंड आई एम अ पर्सन हु हैव एक्सपर्टीज इन मशीन लर्निंग अच्छी खासी है, ठीक है, और वहाँ बेसिक पाइथन की रिक्वायरमेंट निकली है और मैं उसमें अप्लाई कर देती हूँ. तो उस केस में मेरा रिजेक्शन होना, मतलब देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दैट इट कैन रिजेक्ट मी, ठीक है. तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि द व्हाट द जेडी वाज आस्किंग, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन था मुझे उससे बहुत ज़्यादा ही आता था, एंड सो आई एम अ आउट परफॉर्मर. सो वो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है इस केस में, बिकॉज दे फील लाइक कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट what we are looking for, so they can reject. इस केस में what you can do is, whenever you are applying for a job, आप LinkedIn से अप्लाई कर रहे हो, आप नौकरी से अप्लाई कर रहे हो, so first review the JD properly and check कि आपका स्किल क्या क्या मैच कर रहा है उसमें. So even if like your 70% skill set is matching, तो आप अप्लाई कर दो. ट्रस्ट मी, यू कैन अप्लाई, बिकॉज दिस इज समथिंग, 70% इज समथिंग कि आपको आती है चीज़ें. ऐसा भी नहीं आपको बिल्कुल नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा आती हैं. आप कर लोगे इंटरव्यू क्रैक, मोस्टली आप कर लोगे. क्योंकि सी, आई टेल यू सम, आई अंडरस्टैंड दैट जेडी में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है. दे आस्क अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी समटाइम्स, एंड
ऐसा बहुत कम होता है कि वी आर लाइक 100% अवेयर ऑफ एवरीथिंग, एंड विच इज़ नॉट मैंडेटरी। ट्रस्ट मी, सब कुछ आना ज़रूरी नहीं होता और हर कोई सब कुछ नहीं सीख सकता, ठीक है? तो अगर आपका 70 to 80% भी मैच हो रहा है, इट्स मोर देन इनफ, आप अप्लाई कर दो। फोर्थ रीज़न इज़ दैट ऑलवेज customize your resume according to the job profile you're applying. So कई बार क्या होता है कि हम लोग, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि एक ही रेज्यूमे है, वो आप सब जगह अप्लाई कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल वही रेज्यूमे आप कहीं बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन निकली, आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, वही रेज्यूमे डाल रहे हो। वही सेम रेज्यूमे आप किसी दूसरे कंपनी में कंसल्टेंट की पोजीशन निकली, आप वहाँ डाल रहे हो। सो दैट्स नॉट अ राइट वे, ठीक है? Again, your job description plays a very important role here. So again, go to the जॉब डिस्क्रिप्शन, लाइक पहले आप अपनी पोजीशन देखो, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। अगेन ओवरव्यू द जेडी, एंड उसके कीवर्ड्स शुड बी इन योर रेज्यूमे। तो थोड़ा थोड़ा आप मॉडिफाई कर लो, इट्स नॉट लाइक आपको पूरा रेज्यूमे बदलना पड़ेगा। कीप योर की प्रोजेक्ट्स, वो रख सकते हो। आपका अगर एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, keep your experience. That column, I don't think so it should be modified, because that is what something you have done previously, तो let it be there. जो आपकी स्किल्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा यू कैन चेंज दी कीवर्ड्स जो आपकी जेडी में पूछा है। सो अगेन, अगर एटीएस कैन भी होता है तो काफ़ी हद तक आपका रिज्यूमे वो मैच कर जाएगा वहाँ पे। So a big suggestion that don't use one resume everywhere, always customize it. द फिफ्थ रीज़न इज़ दैट यूजुअली हम अपने रेज्यूमे में लिंक्डइन का लिंक मेंशन करते हैं, राइट? अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ मेंशन करो लिंक्डइन का लिंक रेज्यूमे में। सो आपका लाइक रेज्यूमे का टेम्पलेट है, उसमें सबसे टॉप में आप अपना नाम लिखते हो, उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन करते हो, एंड देन यू मेंशन योर लिंक्डइन लिंक। फॉर एग्जांपल यू हैव योर गिटहब ऑल्सो, सो मेंशन योर गिटहब लिंक एज वेल। बेसिकली उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने की प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, वो अपने गिटहब में अपडेटेड रखो, ठीक है? सो बेसिकली हमें लगता है दैट रिक्रूटर विल नॉट सी, बेसिकली दे डू विजिट आवर प्रोफाइल। इफ यू हैव मेंशन द लिंक, दे विल विजिट द प्रोफाइल एंड दे विल गो थ्रू लाइक, ओके दिस पर्सन नोज दिस स्किल्स, दिस इज हिज इंटरेस्ट एरिया, ये प्रोजेक्ट कर रखे हैं आपने। सिमिलरली आपका लिंक्डइन जो है, मेंशन योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, डालो कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में हो, और कितने साल सर्व किया है आपने, ठीक है? वो चीज़। देन सेकेंडली, अगर यू हैड लाइक अचीवमेंट्स इन द कंपनी, आप उसमें अचीवमेंट स्पेसिफिकली मेंशन करो कि यू गॉट एन अवार्ड फॉर सो एंड सो अचीवमेंट यू हैव डन, वो आप मेंशन करो। thirdly, we also do certifications, right? along with along with the working year, we keep doing our certification. So basically this shows that yes, we are upskilling ourselves along with working for the company. सो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। आप अपने रिज्यूमे में हमेशा मेंशन करो कि आई हैव ऑल्सो डन दिस सर्टिफिकेशन एंड आई अक्वायर्ड द स्किल। सो दिस इज हाउ यू कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड लाइक टिल दिस डेट। आज अगर आप अपना रिज्यूमे कहीं डाल रहे हो, तो अब तक का जो भी आपने कर रखा है, आई मीन ऑल योर प्रोफेशनल वर्क, वो सब उसमें मेंशन करो। सो रिक्रूटर डू विजिट इट, एंड उनको व्हाट हैपेंस दैट दे गेट एन ओवरव्यू अबाउट यू कि ओके दिस काइंड ऑफ पर्सन यू आर, दीज मैनी थिंग्स यू नो। तो उस बेसिस पे दे मेक अ डिसीजन फर्दर कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है या नहीं करना है, जो भी है। So yeah, so make sure to keep updated your LinkedIn as well as your Naukri. I will say keep your Naukri updated, क्योंकि वहाँ से कई बार recruiters call करते हैं। I will make a separate video for the Naukri as well, that how I got calls on Naukri. So right now I want you to focus on these 5 points which are majorly important, and surely you will be able to crack the interview.